Okay, Shreyaben. जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। Okay, go ahead. Kushi. हारे हो जी प्यारा जी, हारे हो जी प्यारा जी, सहारा विना बीज उगતું નથી। सहारा विना बीज उगતું નથી। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। जगत कुसंगे जदुख, जगत को संगे जदुख, केवल सत्संगे जसुख। केवल सत्संगे जसुख। दादाजी नु हसतुं मुख, दादाजी नो हसतो मुख, समणे दर्शन थाता सुख। क्षणे दर्शन थाता सुख। हीरा मोती महाराजी, हीरा मोती महाराजी, समृद्ध सतिया विना दलडू ठरતું નથી। सत्या विना दलडू ठरતું નથી। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। દુનિયા ભરમાં લુખ્ખું લાગે, दुनिया भर मालूखो लागे, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે। सत्संग विना सुनो लागे, बिरहो दिवस रात जागे। बिरवो दिवस रात जागे, ज्ञानी भवनी बावट भांगे। ज्ञानी भवनी बावट वांगे, रोको अतिक्रमणा जी, रोको अतिक्रमणा जी, आत्मरमणा विना काई रुचતું નથી। आत्म रमना विना क्याय रुचतु નથી। हारे हो जी दादाजी, हारे ऊजी दादाजी, हारे हो जी प्यारा जी। हारे ऊजी प्यारा जी,
जय सच्चिदानंद. Jai Satchidanand. Okay. Okay. Very quickly. No column. Okay. खुशी કેમ ભાગી ગઈ? Okay. Monica Didi, number 1. હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુભાય દુભવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુભે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન, સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Shreya Didi, number 2. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Prahar, number 3. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ કે અવિનય ન કરવાની પરમ આપો. Okay. Kushi Didi, number 4. હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Shreya, number 5. દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સાથે ક્યારેય પણ Okay. Number 5 and number 6, Monica. હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, કંટીલી ભાષા ના બોલી જાય, ના ભૂલવાઈ જાય કે ભૂલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, કંટીલી ભાષા બોલી તો મને મૃદુરજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ યા પુરુષ ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન ક્યાં જાય, ન કરવાયા જાય, કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Taxiba, number 7. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરે એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Kushi Didi, number 8. હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Harush, number 9. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. Okay. Jai Satchidanand. हीरे काका अभी त्रिमंत्र बुलाइए, बालक को हाँ जी। फॉलो करेगा आप. नमो वितरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताणम, નમો હરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો नमो वज्रायाणम, નમો ઉવજાયાણમ, नमो लोये सव साहुणम, નમો લોએ સૌ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો, सौवपावपणसणो, સૌપપાવપનાશનો, मंगलाणं च सौवेसिं, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ,
परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक તમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક સત્સંગમાં બેસવાની, સત્સંગમાં બેસવાની, સત્સંગ સાંભળવાની, સત્સંગ સાંભળવાની, સત્સંગ સમજવાની સત્સંગ સમજવાની અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો. અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો. હું ભાવ કર્મ, નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, મન, વચન, કાયા મન, વચન, કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. સુચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ओके मोनिका दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन, वचन, काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मार्गी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। ताक्षी बा। हाँ जी सच्चिदानंद। Oh Dada Bhagwan, I am determined to break all the barriers, obstacles and obstructions that come to me in studying. Please shower your divine grace and bless that wills on my reason and give me that infinite inner strength to learning my best. Jai Sachchidanand. गुजराती हिंदी में बोलिए, आज इंग्लिश वाला कोई नहीं है। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दशम स्वर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। आरुष। દાદા ભગવાન। यस। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। पर काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे। के सेपरेशन प्रेयर हिंदी किसको आता है? हिंदी। ओके मोनिका दीदी। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, હું રિયલ છું. हे शुद्धात्मा दादा भगवान,
હું જુદા છું, મોનિકા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, હું રિયલ છું, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, હું પરમનન્ટ છું, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. गुजराती श्रेया જય સચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. જય સચિદાનંદ. इंग्लिश साक्षीबा Jai Sachidanand. Oh Dada Bhagwan, you are separate, Hitakshibai is separate. Oh Dada, oh pure soul Dada Bhagwan, you are real, Hitakshibai is relative. Oh pure soul Dada Bhagwan, you are permanent, Hitakshibai is temporary. Jai Sachidanand. very good everybody, very good. Okay, let us talk about studies. Goal number 1, how are we doing studies? अभी के ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया? 2-3 मास हो गया स्कूल स्टार्ट से कितना टाइम हो गया? 2 months. 2 months. 2 months ही हुआ है? Yes, 2 months. 2 months, okay. 2 months में आपको प्रोग्रेस कैसा लगता है और किस on what basis आपका प्रोग्रेस लगता है? और दादा there is also one thing, उनका बीच बीच में एग्जाम ली जाती है, तो वो भी रिजल्ट बता सकते हैं. या और अभी जिसका टेस्ट और एग्जाम है वो बता सकता है. थैंक यू दीपक दादा. ओके मोनिका दीदी. जय सच्चिदानंद. हिंदी में बोलो. हिंदी में बोलना है. हाँ. हिंदी आज हिंदी बिकॉज केवल और यू आर नॉट हियर. ओके. हाँ. जय सच्चिदानंद. मेरे 2 months में स्कूल खुले थे जिसमें यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स का हुआ था, जिसमें मुझे 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ था, बट मैथ्स में थोड़ा कम है. और अभी भी मेरा एग्जाम चल रहा है, तो मेरा उसमें इम्प्रूवमेंट होगा आई बिलीव. और अभी मेरा मैथ्स थोड़ा मैं सम्स करती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा इजी लग रहा है अभी. ओके श्रेया दीदी. जय सच्चिदानंद. मेरे जब 2 months में स्कूल खुले थे तब मेरी एग्जाम 20 मार्क्स की हुई थी, तो मुझको मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए थे, मैथ और साइंस में अच्छे मार्क्स आए थे, उसमें मेरा प्रोग्रेस हुआ था. ओके मैथमेटिशियन प्रहार. हाँ जय सच्चिदानंद. जब स्कूल खुलकर मेरे एग्जाम थे ना, तब मुझे हिंदी में ज़्यादा टाइम लगता था, और हिंदी में मुझे पसंद भी नहीं था हिंदी, पर अभी जब रिजल्ट आया तब मेरे सारे करेक्ट थे, हिंदी में सब आंसर्स करेक्ट थे. ओके बच्चों लोग, जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है वो बड़ा अक्षर से लिखो. हिंदी को मेरे को पसंद करने का है. नहीं पसंद करने का नहीं, पसंद है मुझे. पसंद मुझे है ऐसा लिखो. ओके प्रहार पोस्टर हमको दिखाना करके और सबको जो इसको वीके करने का है. इताक्षी बा. जय सच्चिदानंद. ऐसे तो मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है, और जब मेरी स्कूल शुरू हुई थी तो इस बार हमारे 25 मार्क्स की टेस्ट हुई थी, तो उसमें मुझे सोशल में फुल मार्क्स आए थे और इंग्लिश में मेरे 19 मार्क्स आए थे 25 में, तो इंग्लिश मेरा वीक है. ओके खुशी अहमदाबाद. हाँ जय सच्चिदानंद. मेरी 2 months में ये यूनिट टेस्ट थी, उसमें तो आज ही मेरे पेपर खत्म हुए हैं, तो अभी रिजल्ट नहीं आया है. कैसा है पेपर? मैथ में कैसा गया पेपर? मैथ्स में अच्छा गया था. देवम. जय सच्चिदानंद. इन 2 महीनों में मेरे स्कूल में टेस्ट हुई थी 40 मार्क्स की, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा आया था, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा वीक आया है. थोड़ा सा अच्छा, उसको मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ता है व्हाट इट मींस. बहुत खराब आया. 27 आए हैं. तो 40 मैथ्स में
उसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। तो क्या करेंगे आप? प्रैक्टिस मैथ्स की, और स्कूल में से भी देते हैं और मैं थोड़ा सा खुद करता हूँ अभी। आपका ट्यूशन है? हाँ। ओके, आपका तो बाल बहुत बड़ा है ना, तो चोटी बना के ऊपर बांध देने का। ओके, मल्टीपल सीलिंग चोटी। पे तो मालूम पड़ेगा कि फर्जियात करने का है। ओके, और हाँ। फोटो भेजना चोटी के साथ। तो मालूम है ना क्या होता है चोटी बांध के ऊपर बांधने का? तो यू जस्ट स्टे देयर एंड डू इट। अरुष, जय सच्चिदानंद। मैंने अभी 6 मंथ्स का स्कूल चालू हुई है। मेरे एग्जाम हुए थे 20 मार्क्स में से, उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए और मेरा सारे सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो मैथ में क्या हुआ वो बताओ ना। नेक्स्ट में 20 आउट ऑफ 17 आए। 17 out of 20? 20 आउट ऑफ 17। It's called 20 और 17 out of 20. 70? वो पास बोलता है कि फेल होता है? दिवकांत जी, इंडिया में क्या स्टैंडर्ड है? 20? Yeah, Arush, 20 marks out of 70. 1717। So 17 out of 20. ओह वेरी गुड, तो वेरी गुड। ये आप ऐसे करो, परसेंटेज निकाल के हमको दो। हम तो बुद्धू आदमी है, हमको मालूम नहीं पड़ता है आउट हो। हम वो कोई परसेंटेज बताए तो हमको तरह लाइट आती है। ओके ओके, विधि दीदी आपका क्या हाल है? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये है कि मुझे 6:30 बजे उठना है, लेकिन आज मैं 15 मिनट लेट उठी थी। मेरा सेकंड नियम ये है और कि नियम छोड़ मुझे देने का अभी। उठ नियम इज समथिंग यू डू इट कंसिस्टेंटली। नहीं करता है छोड़ देने का, बिकॉज यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट ना। ओके बोलो। मेरा सेकंड नियम ये है कि मुझे आज पूरे सत्साधन करने हैं, और आज मेरा एक्स्ट्रा सत्साधन भी हुए थे और आज मैंने आरती भी की थी। और मेरा तीसरा नियम ये है कि मुझे किसी भी कलम को ब्रेक नहीं करना है, लेकिन आज मेरे से 4th कलम ब्रेक हो गई थी। क्या हुआ था? किसके साथ? मम्मी के साथ? नहीं, वो किसी के साथ हुआ नहीं था, लेकिन ऑफिस में जब लाइटें चली गई ना, तो फिर घर में बैठना पड़ा, तो उसकी वजह से अभाव आ गया। वो तो बहुत अच्छा है, फ्री टाइम मिल किसके गया दादा ऊपर? का। लेकिन किसके ऊपर अभाव आया? गुजरात जी भी? यस किसके पर? जी भी जी। पर। तो ये तो बहुत गुजरात अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ओ जी भी, सॉरी हम तो ओ जी भी आपका दादा का बिजनेस है? नहीं, तो दादा लेकिन का ऐसा होता है तो दिन फोन में करके कर सकता है ना। 2-3 बार ऐसा होता ही है, इसलिए। तो वो तो अच्छा है, तो एक्स्ट्रा विधि कर सकता है, पद गा सकते हैं। हाँ, तो मैंने वही किया, फिर लाइटें गई ना तो। वो खराब नेगेटिव विषय निकाल देने का कि ये तो हो जाएगा। दिस इज ये व्यवस्थित शक्ति को मालूम है आपको क्या होता है। हाँ, रेड्डी दादा, इसको फ्री टाइम नहीं बोलते ना? वो गुस्सा करते हैं, नहीं, खराब लेकिन फ्री बोलते टाइम हैं। बोलते नहीं वो है ना तो इसको। अपना अपना धर्म है ना, लेकिन श्रीलंका फ्री का। टाइम तो मिलता नहीं है ना, फ्री टाइम। एनीवे ओके, दीपकांत योर टर्न नाउ। ओके, सी, एक बात समझना है, जो सब्जेक्ट में आप वीक है, मुझे करना है, यानी आप अभी करते नहीं है एवं हाँ, आपने अपना टाइम टेबल भेजा नहीं है। फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो आप? 7th में है ना? थोड़ा थोड़ा होम टाइम टेबल रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपने भेजा नहीं है अभी तक। ये है नहीं ना, घर का होम टाइम टेबल कौन बनाएगा? हाँ तो बोलो। एक क्वेश्चन है दीपकांत, देवम, आपका मम्मी तो टीचर है ना, हाँ। ऐसे कैसे चला रही थी घर? हाउ कैन शी टॉलरेट? आपको खाना क्यों देती है वो टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है दीपक लेकिन दादा। वो उनका बहुत प्यारा बच्चा है। ओ हम्म।
इसके लिए थोड़ा इजी गोइंग है। अच्छा अच्छा और देखो ये हिताची बा इंग्लिश वीक है तो उसके लिए क्या करते हो आप? चलो जल्दी बोलो ना, ये क्या म्यूट करके बैठ गए? मैं पता नहीं तो भी कोई। वो मेरी बहन आवाज करती ना इसलिए म्यूट रखती हूँ। वो तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन बोलो इंग्लिश के लिए क्या करते हो क्विकली? इंग्लिश में तभी मैं बहुत प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, कभी कभार रीडिंग करती हूँ, मेरे ना ग्रामर तो में ऐसे ही अच्छा हो जाएगा ना? नहीं। फिर उसके लिए डेली टाइम रखना पड़ेगा आपको। आपको क्या आता है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस प्रॉपरली तो उसका कोई मतलब नहीं होता। गुजराती मीडियम में पढ़ती है इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश ठीक नहीं है तो क्या लिखेंगे आप? समझ में आया? वैसे ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है तो उसके लेकिन वो तो ग्रामर तो सीखो ना, ग्रामर उसमें क्या है, लिखो। आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कहाँ मिस्टेक करते हैं। हाँ। वो ग्रामर में मार्क्स कम आते हैं या लिखने में ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है? लिखने में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है। लिखने में यानी वो टेंस आप प्रॉपर नहीं करते हैं, तो जरा करो ऐसा। समझ में आया? हाँ, टेंस में भी मेरी गड़बड़ होती है। ऐसा कैसा? ये तो गुजराती में तो गड़बड़ नहीं करती है। हाँ, हाँ वो समझ में आया? यू हैव टू प्रैक्टिस, रीड, राइट। समझ में आया? मुझे टाइम टेबल नहीं भेजा है अभी। मैंने भेजा है टाइम टेबल मेरा। फिर उसका क्या मतलब है? इंग्लिश का एलोकेशन किया है ठीक से? हाँ, मैंने मेरा रिजल्ट भी भेजा है आपको। अरे एलोकेशन किया है, इंग्लिश का पूछ रहा हूँ। नहीं। फिर उसका मतलब क्या है? जब योर मार्क्स आर नॉट कमिंग गुड इन इंग्लिश तो उसके लिए एलोकेशन करना पड़ता है ना होम टाइम टेबल में। हाँ। ठीक है, ओके, मैं जरा देखूंगा। लेकिन ये करो, जहाँ आपके जो सब्जेक्ट वीक है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड दिस इज फाइन। जय सच्चिदानंद। जय सच। ओके हिरण काका, ये सब आपने सुना। ये आप तो अहमदाबाद में रहते हैं ना? हाँ। तो देवन को चोटी कैसे बनाने का जरा सिखा देना। हाँ। ओके, बोलिए आप। ये सब बच्चों ने बात करी तो मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। चोटी याद गया? आपकी चोटी याद आ गया? मेरे को मेरी जो गलतियां थी वो सब मेरे को दिखाई दी। मेरे को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। और आपको सही बात बताऊं तो जब 5वीं कक्षा में था तो दादा भुवन मिले थे, तब पहली कक्षा में थे। और 5वीं कक्षा में था ने तो पापा को ऐसा लगा कि ये फेल होगा, 5वीं कक्षा में फेल होगा क्योंकि पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल। 4थी कक्षा तक अच्छे मार्क्स आते थे। तो फिर दादा को कंप्लेन किया कि दादा ये पढ़ता नहीं है, ये तो क्या करे, पास हो जाए, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दो। तो दादा तो सत्संग कर रहे थे, तो मेरे को अंगूठे पे आधे पौने घंटा लगा दिया विधि करने के लिए, सिर्फ ये पास होने के लिए। तो मेरे को लगा कि दादा ने ये विधि करी है तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा हो गया। और जब 10वीं में आया तब दादा चले गए थे, तो 10वीं में मैं गुजराती में फेल हो गया। ये सब मेरी गलतियां आपको सब बता रहा हूँ, जैसे आप लोग बताते हैं ना वैसे ही ये सब मेरी गलतियां भी इस तरह से हुई थी। लेकिन ये पढ़ाई में इंटरेस्ट, ये पढ़ाई में पास नहीं होते हैं या तो कम मार्क्स आते हैं, उसके पीछे का रीजन पता चला कि इसका रीजन क्या होता है। क्या लगता है किसी को, कोई बताएगा क्या रीजन होता है? हम मेहनत नहीं करते। हम मेहनत नहीं करते। नहीं, ऐसा है कि कोई भी चीज के अंदर आपको आपका मार्क्स कम आता है, कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आता है, तो कहीं ना कहीं अपने को उससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। या तो आपको ये वो चीज समझ में नहीं आती है, या तो उसको आप जिस तरह से समझने का है तो समझा नहीं है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। अपनी जो सही समझ है, अगर सही समझ हो गई तो उसके लिए
इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। कोई भी चीज अपने को ज्यादा मेहनत कब करनी पड़ेगी कोई भी चीज के अंदर, कि जब उसकी समझ कम होगी तब, के कहीं ना कहीं अपने को उसकी समझ कम है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, तो कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं जब 10वीं में फेल हुआ ना, तो अपने कुलदीपक भाई आपका पुत्र थे, वो उनका देहांत हो गया। उन्होंने मेरे को इतना ही बताया कि अगर आपको हमारे साथ रहने का होगा तो आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा। अब जब उन्होंने इतनी बताई बात तो मेरी मेहनत चालू हो गई पढ़ाई के पीछे, इंटरेस्ट चालू हो गया कि भाई अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो उनके साथ मेरे को रहने का नहीं मिलेगा। तो ये कहना क्या चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी जो समझ है वो क्यों कम है, उसके पीछे मेहनत क्यों करनी पड़ती है कि अपना इंटरेस्ट कम है वहां पे। तो कोई भी चीज के अंदर अपना इंटरेस्ट बनाने का है, अगर अपनों ने इसके पीछे इंटरेस्ट बना लिया तो उसके पीछे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो चीज याद रह जाती है। जैसे अपन अभी सत्संग में आते हैं तो सत्संग में जो बात बताते हैं तो अपने को याद रहती है न, तो उसके पीछे अपना इंटरेस्ट होगा तो वो याद रह जाएगी। कोई भी मूवी देखते हैं तो वो याद कैसे रह जाती है, तो उसके पीछे अपना इंटरेस्ट है। कोई भी बात है वो अपने को याद क्यों रह जाती है कि उसके पीछे अपना इंटरेस्ट है। तो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाने का है, और इंटरेस्ट क्यों नहीं बढ़ता है वो चेक करने का है कि इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं लगता है मुझे। तो कि ये समझ में आएगा, और इस तरह से अपन उसके अंदर इंटरेस्ट बना के वो पढ़ेंगे तो वो उसके पीछे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो चीज याद रह जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, तो अभी सब प्लीज अंदर से सोचो कि इंटरेस्ट कैसे लाने का, और रिजॉल्व करो कि हमको 100% मार्क्स लाने का ही है। ओके, जैसे एक एग्जांपल दूं रजनी दादा। ओके, हाँ बोलो। मुझे ये पढ़ाई में, जैसे मैं पढ़ाई करता था तो इतना याद नहीं रहता था, लेकिन मेरे को संगीत में इंटरेस्ट था। तो 11वीं 12वीं में जब था तो कविराज ने 1000 रुपया दिया था कि आप ये सीखना है संगीत को। तो जब संगीत सीखने के लिए जाता था तो हमको बोल लिख के देते थे। जैसे कोई भी है बजाने का है, उसका बोल लिख के देते थे, तो उसके पीछे प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती थी, तो वो चीज याद रह जाती थी। जैसे उसमें तो ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे ये तरुबेन को पता होगा कि त्रिताल का बोल क्या है, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तीन तीन ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तीन तीन ता दिन दिन दा। तो ये 16 मात्रा में मुझे याद नहीं रखना पड़ता था ये सब, एक बार उसने बता दिया तो याद रहता था। तो मेरे को पता चला कि याद नहीं रहने के पीछे क्या रीजन है, तो कि इसके पीछे मेरा इंटरेस्ट कम पड़ता है, वो सबसे बड़ा रीजन है। तो वहां मेरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी, मुझे नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता है, मेरे को कम समझ में आता है, ये सब चला गया वो टाइम से। मालूम पड़ा सबको? सो एवरीबॉडी यू नो रिजोल्व करना है कि आपको क्या करने का है, क्यों करने का है, राइट? अभी देव, आपको मैथ में मार्क्स जस्ट मोर क्यों लाने का है आपको? मैथ्स में परफेक्ट बनूं इसलिए, क्योंकि आगे वो काम आने वाला है इसलिए। हाँ, सी वेरी इम्पोर्टेंट कि आगे काम, ये सब आप सीखते हो, सब काम आने वाले हैं, यू नो। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको अभी से अच्छा हैबिट्स हो जाएगा तो विल बी दादा की जैसे सब हो जाएगा। ओके, ओके, जय सच्चिदानंद। एक मिनट।